Hi everyone. So I'm not sure about the attendance today, but surely we won't want to hold this on for longer time. So yeah, we'll start it, and will then people can start coming in. So yeah, so I have my colleague, my ex-colleague, uh, here today to present a session on how to use MS Word to create a better CV. So he will give you some sort of understanding, uh, a knowledge of basic handling of MS tools, so that you would be able to use MS Word to create not only your resume, but this is something which will benefit you in your corporate life further. So this is something which is very basic, and every company used to have this tool, and people use it. So I think this would be a great session. So talking about my colleague Aditya, he is also a working professional. He's a business analyst expert right now, and I had got an opportunity before to work with him for like 2 years. Right now, upon the group's request, he has marked his presence to to conduct this session. So yeah, hi, thanks Adit. I would like you to just now start and start with the lecture with no wasting of time from your end. Thank you. Thank you, Vivek. Thanks for the introduction. So, hi everyone. My name is Aditya Jain, and as Vivek has already briefed all of us about the topic, why are we here today over this call? So, we'll be starting building a resume. So, let us set the understanding right. Will, as Vivek had described, will be using basic features of MS Word. MS Word in itself is a very powerful tool and very vast. Yeah, we won't be using all of it right now, but just the basics that we'll be covering. And to demonstrate those basic features, we'll be creating a resume. Uh, Vivek, do you mind if we switch to Hindi, or are we supposed to carry out this session only in I English? would say I would request you to make it more casual. So let's ज़्यादा मतलब थोड़ा मिक्स करके करते हैं, क्योंकि हमारी ग्रुप की ऑडियंस भी थोड़ी वैसी ही है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस एज वेल. सो बात के लिए भी जो फ्लोट करेंगे तो ग्रुप वैसा ही टारगेट करना है जिनको एक्चुअली दिक्कत होती है. तो थोड़ा हिंदी मिक्स करके ही बात करेंगे. ठीक है विवेक, दैट्स ग्रेट. सो स्टार्ट करते हैं अभी. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिज्यूमे फॉर दैट मैटर, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, देयर आर बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, especially on editors like MS Word or any other editing tools, that जो भी आपका font होता है, that has a very big role in depicting or portraying what you are writing, basically the presentation, the presentability. So we'll select only one font and we'll stick to that font throughout the document. बार बार हम font बदलने नहीं वाले हैं, एक font select करेंगे और वही रखेंगे. Second आती है font की size. So हम font की size भी set करते हैं, जैसे हमें heading देनी है, सब heading देनी है या content डालना है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जनरली हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हुए. एंड स्पेशली उसके बाद इंडेंटेशन वगैरह और भी चीजें हैं जो हम कोर्स में साथ साथ सीखते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग फर्स्ट. सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉप पे. ये हमारा मेन जो है बार है, टूल बार, जहाँ से हम हर चीज, मेन्यू बार एंड टूल बार, जहाँ से हम हर चीज एक्सेस कर सकते हैं. आपको फाइल के रिलेटेड जो भी काम होता है, फाइल को सेव करना, पब्लिश करना, फाइल की डिटेल्स जानना, प्रिंट करना, वो सारे मेन्यू आपको फाइल में मिलेंगे यहाँ पे. सेकंड,
ये आपका होम टैब है। यहाँ पे आपको सारी बेसिक डिटेल्स मिलेंगी फॉर्मेटिंग वगैरह से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हो फॉन्ट सेलेक्ट करना, फॉन्ट के साइज सेलेक्ट करना, फॉन्ट के और जो भी एट्रीब्यूट्स है जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, इटैलिसाइज, अंडरलाइन, उसके कलर्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको यहाँ इस होम ऑप्शन में मिलेंगी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है इंसर्ट मेन्यू। आप आपके टेक्स्ट में, आपके फील्ड में और भी जो चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, चाहे वो एक नया पेज हो, कवर पेज हो, टेबल हो या और पिक्चर्स हो और बहुत कुछ जैसे हेडर, फुटर एक्सेट्रा। फिर ये है डिज़ाइन, आपको फॉर्मेट किस तरह से करना है आपके पेज को, वो उसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सेकंड है आपका लेआउट। आपका जो भी लेआउट है आपको लेआउट किस तरह से रखना है, मार्जिन क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कॉलम्स एक्सेट्रा जो भी है वो यहाँ रहता है। एक सेकंड विवेक, आई वुड लाइक टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ मोमेंट। हाय गाइस, ओके, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वापस से स्टार्ट करते हैं। सो आई शेयर माय स्क्रीन अगेन। ऑलराइट, ठीक है। सो ये सारे कुछ ऑप्शन थे और जब हम बनाते रहेंगे ये डॉक्यूमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो जैसे हमने पहले सेट किया था एक्सपेक्टेशन की हम एक रिज्यूमे बना रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम एक टाइटल लेंगे। टाइटल रिज्यूमे ही होगा, लाइन में कर लूंगा। और जैसे मैंने बताया था फॉन्ट, फॉन्ट हम कुछ बड़ा सा रखेंगे यहाँ। फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को। सो मेरा फॉन्ट टाइटल अभी फिलहाल रहेगा रिज्यूमे, और इसको मैं सेलेक्ट करके प्रेस करूंगा कंट्रोल पी, जिससे ये बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे स्पेसेस काफ़ी छूट गई हैं, बेसिकली बिकॉज मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं लेआउट में आके, मार्जिन टैब में आके, मार्जिन को जो नॉर्मल में होता है बाय डिफॉल्ट उसको नैरो कर देता हूँ थोड़ा। ये फॉन्ट ऊपर चला गया। अब इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, सो दैट
ये थोड़ा सा हमें एक सही फील दे साइड से। बॉर्डर बॉर्डर हमें मिलेगा, लेआउट। ऑर्डर्स को हम आगे ऐड करेंगे एक बार, वो ऑप्शन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो रिज्यूमे स्टार्ट करते हैं एक बार वापस से। सो लेट्स से लेफ्ट इंडेंट कर दिया मैंने। मैं पूरे रिज्यूमे को अब लेफ्ट इंडेंट में ही रखूंगा, केवल मेरा जो टाइटल था वो सेंटर में था। अब हम सेट कर देते हैं हमारे, अब हम यहाँ सबसे ऊपर हम देंगे हमारा टाइटल। सो लेट्स से टाइटल इज डालते जाएं। इसको हम बोल्ड भी रख सकते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। हम देंगे इसे मैं बोल्ड नहीं रखना चाहूँगा तो वो हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम देंगे मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट। उसके आगे एड्रेस। एड्रेस ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे मैं बैंगलोर कर्नाटका इंडिया, या फॉर दैट मैटर बैंगलोर इंडिया, ओके इससे बैंगलोर कर्नाटका। सो आई जनरली प्रेफर, सो आई से ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अगेन अब जब मैं ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ उसके बाद जो चीज़ लिख रहा हूँ वो मेरी कंटेंट है ऑब्जेक्टिव का, तो उसकी फॉन्ट साइज में छोटी कर दूंगा थोड़ी। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट email words, कुछ भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव लग रहा है, वन लाइनर टू लाइनर यहाँ डाल के। लेट्स से नेक्स्ट हमारा सेक्शन है दैट इज अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन यहाँ डाल के, अब एजुकेशन में जनरली हम टैबुलर फॉर्म में दिखा देते हैं। लेट्स से मेरी एजुकेशन में बैचलर्स है, 10th एंड 12th है। सो उसमें हमें क्या क्या शो करना है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले टेबल ले लेते हैं से एजुकेशन नाम एंड इंस्टीट्यूशन का नाम एंड दी मार्क्स ऑब्टेन, 3 और 3/4 का एक टेबल इंसर्ट कर दिया। ऐसे यहाँ हम दे देते हैं क्वालिफिकेशन, यहाँ हम दे देंगे इंस्टीट्यूशन, और यहाँ हम दे देंगे इसके मार्क्स
or grade. So qualification class 10 institution, let's say CBSE से किया है मैंने, और 9.2 was my GPA. Then class 12 again CBSE से किया है, 86.4%. Let's say B in science engineering university से marks 8.3 CGPA. Okay, I think that is good enough. Work experience, so technical expertise or let's say मुझे work experience अगर आपका है कुछ और दिखाना है, experience का, and then I'll start with name of the company. हम यहाँ कंपनी का नेम लिखेंगे, कंपनी ABC, एंड यहाँ पे कब से कब तक काम किया है. So let's say starting से लेकर के let's say 2 साल, 31st of December 2018. Right, that reminds me insert करेंगे columns towards the right, date की से 2010, 2012, 2016. तो अभी आपने देखा राइट क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जनरली उस टेबल से रिलेटेड. तो अभी मुझे जैसे कॉलम इंसर्ट करनी थी, इंसर्ट में गया, कॉलम और रोज के ऑप्शंस आ गए. रेलेवेंट ऑप्शन जो आपको करना है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब मान लीजिए ये मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम मुझे बोल्ड में देना है. ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि वो अंडरलाइन रहे, तो इसे सिलेक्ट करके आप बोल्ड को टॉगल कर सकते हैं या अंडरलाइन के ऑप्शन में जाके इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. आप एक चीज नोट की जैसे ये रेड कलर की लाइन आ रही है नीचे, वो होता है स्पेल चेक. जहां पर भी MS वर्ड टूल को लगता है कि कोई स्पेलिंग गलत है, वो डिफॉल्ट यहाँ पे रेड कलर दे देगा. जैसे स्पेलिंग ABC, वो कह रहा है कि स्पेस दो. प्रॉपर नाउन्स में जनरली ये आ सकता है, तो आप उसे इग्नोर पे क्लिक करके, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है आपकी स्पेलिंग में, आप वो सजेशन पे क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं. फिर आप अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डेट मैंने दी है वर्कएक्स की, वो बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से वो फॉन्ट. तो नीचे आके मैं डिस्क्राइब करूँगा मेरे काम को, जो मैंने यहाँ काम किया. Let's say work on various technologies. अब जैसे वेरियस की स्पेलिंग या फिर गलत हो गई, तो मैं वेरियस को सिलेक्ट करके टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स फॉर इन हाउस प्रोडक्ट, एक
एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन हो जैसा भी हो वो दे सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक ही कंपनी का वर्कएक्स है, उसके अलावा वर्कएक्स के अलावा आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या क्या है, तो उसके लिए मैं एक और हेडर डालूंगा। तो जैसे हेडर की मैंने फॉन्ट रखी थी 16 टेक्निकल 30 बोल्ड कर दूंगा। फिर मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे जो मुझे आते हैं, लैंग्वेजेस हैं जो आती हैं, तो मैं क्या करूँगा, वो मुझे लिस्ट करना है बेसिकली। तो लिस्ट करने के लिए यहाँ ऊपर आके आप बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर आप न्यूमेरिकल लिस्ट ले सकते हैं जिससे आपको नंबरिंग मिलेगी। ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे सारे। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ हमारे कंटेक्स्ट के लिए केवल बुलेट। मान लीजिए SQL, C, जावा, पाइथन, ये सब मैं चाहता नहीं हूँ कि बोल्ड में हो, इसे बोल्ड से हटा दूंगा। ये सारी एक्सपर्टीज आप ऐसे लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे मैं अपनी हॉबीज लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हॉबीज या को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज बेसिकली को करिकुलर नहीं होगी। सो लेट्स से हॉबीज मुझे लिखनी है, वापस से उसे लिस्ट में करूँगा। एंड फॉन्ट यहाँ छोटा होना चाहिए, यहाँ भी छोटा होना चाहिए था, तो उसे हम ऐसे सेलेक्ट करके पूरे को इस तरह छोटा कर सकते हैं। मीटिंग का ध्यान रखेंगे। Sorry to interrupt. We have 5 minutes more to wrap it up. So just if you can quickly finish it up, then we will get back to people. If they have any query, they can just ask. So I think you have covered a lot of features already. So now this can be used to create as many possibilities they want to create in their resume. So these are there are a lot of features which can't be explained in a meeting. So I understand that very well. So yeah, I think we have Deepak. So Deepak here. So Deepak, if you have any query, you can just directly unmute and ask Aditya about it. If you want to ask anything specific about MS Word. So I understand that this was a very brief idea of using MS Word, but again I thank Aditya to be here to just uh, make it as quick as possible, and besides that he will be available on the group to guide us for any kind of query. So whatever query comes in your mind regarding when you start using MS Word and you get to see any challenge, please ask in the group. Aditya is going to be a part of the group to assist you further as well. So whenever you come around any query, so basically I think this is something related to border which Aditya was talking about. So thanks Aditya, you can just finish it off and take your time. Thank you. Been covered so far. So I think these were the basics I just wanted to depict. Anyway, the resume is also almost over. We have added all the
the vital information over here, the qualification, work experience, technical expertise, so on and so forth. And as I've explained, you can use these bars. As you can see, I've added the border also now. It was under the design section towards the right. So whatever you need in the tool, you have everything right over here. You can explore the tool. Now you have the basics now, explore the tool. You can get back to us whenever you feel you are stuck somewhere. So with this, I would like to conclude this meeting. Thank you, Vivek. Thank you, guys. Thank you. Bye.